آپ یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ رات کے اس پہر کسی لڑکی کے کمرے میں آتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی؟ زویا کی پھٹی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی پھٹی تھی، وہ نہایت غصے میں دہاڑی تھی۔ تمہارے ساتھ رات گزارنے آیا ہوں جان، اور تم کوئی غیر لڑکی نہیں بلکہ میری بیوی ہو۔ وہ اسے گود میں اٹھاتا بیڈ پہ پھینک چکا تھا۔ جنید کے یہ الفاظ سنتے زویا نے کمفرٹر اوپر تک کھینچا تھا۔ اس کی اس حرکت پہ جنید نے بامشکل کہکا ضبط کیا۔ کیا ہوا ڈارلنگ، مجھے خوش نہیں کرو گی؟ وہ کمفرٹر اس سے چھینتے نہایت ہی مشکوک انداز میں بولا تھا۔ زویا کا سارا بدن خوف سے لرز رہا تھا۔ جو شوہر اسے منہ نہیں لگاتا تھا، اچانک اسے رات گزارنے کا خیال کیسے آ گیا؟ کمرے کا دروازہ کھلنے کی ہلکی مگر اچانک آواز پر زویا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اندھیرے میں اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ اس نے جلدی سے سائڈ لیمپ جلایا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی سانسیں جیسے گلے میں ہی اٹک گئیں۔ آپ یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ رات کے اس پہر کسی لڑکی کے کمرے میں آتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ اپنے اوپر کمبل کھینچتے ہوئے انتہائی غصے سے چلائی تھی۔ سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا شوہر جنید تھا۔ وہ ایک دراز قد، چوڑے کندھوں اور پرکشش خد و خال کا مالک انسان تھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں ہمیشہ ایک سیاہ مہری اور غصہ چھایا رہتا تھا، مگر آج ان آنکھوں میں کچھ اور ہی چمک تھی۔ تمہارے ساتھ رات گزارنے آیا ہوں جان، اور تم کوئی غیر لڑکی نہیں، میری بیوی ہو۔ جنید نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑا اور ایک ہی جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچ کر بیڈ پر گرا دیا۔ زویا شدید خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی اور بیڈ پر پڑے کمفرٹر کو مضبوطی سے پکڑ کر اپنے گرد لپیٹ لیا۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ جنید نے بامشکل اپنا کہکا روکا اور آگے بڑھ کر ایک ہی جھٹکے سے وہ کمفرٹر اس کے ہاتھ سے چھین کر دور فرش پر اچھال دیا۔ کیا ہوا ڈارلنگ، مجھے خوش نہیں کرو گی؟ اس نے جھک کر زویا کے چہرے کے بالکل قریب سرگوشی کی۔ اس شخص کے اس پراسرار اور مشکوک انداز پر زویا کا سارا بدن سر پڑ گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ جو انسان پچھلے 6 ماہ سے اس کے سائے سے بھی دور بھاگتا تھا، آج اچانک اس پر اپنا حق کیوں جتا رہا تھا۔ جنید کی قربت اور اس کی سانسوں کی تپش نے زویا کے ذہن میں 6 ماہ پہلے کی وہ سرد رات تازہ کر دی جب وہ پہلی بار اس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی۔ اس رات زویا سرخ روسی جوڑے میں سمٹی بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس کا دل سینے میں اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ زویا ایک انتہائی خوبصورت اور معصوم سی لڑکی تھی جس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں زندگی کے کئی خواب سجے تھے۔ وہ اپنی نئی زندگی کے آغاز پر نروس بھی تھی اور خوش بھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور جنید بھاری قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر روایتی دلہن والی کوئی نرمی، خوشی یا مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ اس کی پیشانی پر گہری سلوٹیں پڑی تھیں۔ اس نے دروازہ بند کیا اور زویا کی طرف ایک نظر دیکھ کر بیڈ سے کچھ فاصلے پر رک گیا۔ اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ میں نے تمہیں دل سے اپنی بیوی تسلیم کر لیا ہے۔ اس کی پاٹدار اور سرد آواز نے کمرے کی خاموشی کو بے دردی سے توڑا تھا۔ زویا نے چونک کر سر اٹھایا اور اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ یہ رشتہ محض میرے والد کی ضد کا نتیجہ ہے۔ جنید نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس کا لہجہ برف کی مانند ٹھنڈا تھا۔ میں نے صرف ان کی عزت رکھنے اور ان کی ضد کے آگے ہار مان کر تم سے نکاح کیا ہے۔ اس رشتے سے اور خاص طور پر مجھ سے کسی چیز کی امید مت رکھنا۔ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ الفاظ کسی بھاری پتھر کی طرح زویا کے دماغ پر لگے تھے۔ اس کے سارے خواب جو اس نے خوشگوار اور محبت بھری زندگی کے لیے دیکھے تھے، ایک ہی پل میں چکنا چور ہو گئے۔ اس کے حلق میں ایک کڑوا سا گولا اٹک گیا۔ اس نے بے بسی سے اپنے ہونٹ پیچھے اور آنکھوں میں امڑنے والے آنسوؤں کو زبردستی پیچھے دھکیلا۔ اس کی خودداری اسے اس مغرور اور ظالم شخص کے سامنے رونے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور کوئی صفائی، کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس اپنے ہاتھوں کی مہندی کو دیکھتی رہی جو اب اسے بے رنگ لگ رہی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر زویا معمول کے مطابق سب گھر والوں کی خدمت میں مصروف تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر ایک پرسکون پھول چڑھا لیا تھا تاکہ کسی کو اس کے اندر کے ٹوٹنے کا اندازہ نہ ہو۔ جنید کی والدہ، جو ایک انتہائی شفیق اور محبت کرنے والی خاتون تھی، نے زویا کو پیار سے اپنے پاس کرسی پر بٹھا لیا۔ بیٹا، تم کیوں اتنی صبح اٹھ کر کام کر رہی ہو؟ تم بیٹھو اور آرام سے ناشتہ کرو، یہ کام ملازم کر لیں گے۔ انہوں نے زویا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے کہا۔ نہیں آنٹی، میرا مطلب ہے ابھی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، زویا نے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ جنید کے والد، جو سر کے سربراہ اور ایک روبدار انسان تھے، اخبار پڑھنے میں مگن تھے۔ انہوں نے بھی اخبار سے نظریں ہٹا کر زویا کو دیکھا اور بولے، بیٹے، یہ گھر اب تمہارا ہے،
इसे अपना ही समझो और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक बताना। ज़ोया ने सर हिलाकर इनका शुक्रिया अदा किया। इसी दौरान जुनैद तैयार होकर सीढ़ियाँ उतरता हुआ आया और ब्लैक सूट में मलबूस इंतहाई संजीदा लग रहा था। इसने कुर्सी खींची और खामोशी से बैठ गया। इसने कॉफ़ी का मग उठाया और पीने लगा। इसने ज़ोया की तरफ एक नज़र देखना भी गवारा नहीं किया, जैसे वो लड़की वहाँ मौजूद ही ना हो। जैसे वो कोई बेजान चीज़ हो। नाश्ता ख़त्म करने के बाद जुनैद अपनी कुर्सी से उठा। इसने इंतहाई सर्द और रूखे लहज़े में अपने वालिद को खुदाफ़िज़ कहा और सीधा मेन दरवाज़े की तरफ बढ़ गया। ज़ोया की निगाहें कुछ पल के लिए इसकी चौड़ी पुश्त पर ठहरीं। इसके दिल में एक अजीब-सी कसक उठी कि क्या वाक़ई इसकी कोई अहमियत नहीं। फिर इसने खुद को झटका, एक गहरा साँस लिया और जुनैद की छोटी बहन सारा की तरफ मुतवज्जा हो गई। सारा गो के रिश्ते में इसकी नंद थी, मगर इसका रवैया ऐसा था कि ज़ोया इसे अपनी छोटी बहन ही समझती थी। दोपहर का वक़्त था, लाउंज में ज़ोया और सारा बैठी आपस में हँसी-मज़ाक कर रही थीं। जुनैद भी आज जल्दी घर आ चुका था और सामने वाले सोफ़े पर बैठा लैपटॉप पर कुछ फ़ाइल्स चेक कर रहा था। माहौल में एक अजीब-सी खामोशी और सुकून था, जिसे अचानक दरवाज़ा खुलने की ज़ोरदार आवाज़ ने तोड़ दिया। नताशा उर्फ़ नशी शोर मचाती हुई अंदर दाखिल हुई। वो एक मॉडर्न, तेज़-रफ़्तार और लापरवाह सी लड़की थी। नीली जीन्स और काली लेदर जैकेट पहने, लड़कों जैसे छोटे कटे हुए बालों के साथ वो सीधा जुनैद की तरफ बढ़ी। "जुनैद, तुम यकीन नहीं करोगे आज मैंने क्या किया।" वो बेतकल्लुफ़ी से जुनैद के बिल्कुल साथ वाले सोफ़े पर धप से बैठ गई। जुनैद ने लैपटॉप की स्क्रीन से नज़रें हटाईं और इसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। "क्या हुआ निशी? आज फिर किससे पंगा लेकर आ रही हो?" निशी ने हँसते हुए इसे अपने बाइक रेसिंग का किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। यार, वो लड़का समझ रहा था कि मैं हार मान लूँगी, लेकिन मैंने इसे चौराहे पर ऐसा कट मारा कि वो बस देखता ही रह गया। वो हँस-हँस कर बातें कर रही थी और जुनैद, जो सुबह घर वालों और ज़ोया के साथ अपना सर रूखा और खामोश था, अब खुलकर मुस्कुरा रहा था। इसके चेहरे की वो सख्ती मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी थी और वो निशी की हर बात पर कहका लगा रहा था। ज़ोया खामोशी से सोफ़े पर बैठी ये मंज़र देख रही थी। इसे निशी की इससे हद से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी और जुनैद के इस बदले हुए दोस्ताना रवैये से दिल में एक तेज़ चुभन महसूस हुई। इसे लगा जैसे किसी ने इसके सीने में सुई चुभो दी हो। वो सोचने लगी कि क्या जुनैद के पास मुस्कुराने और बात करने के लिए सिर्फ़ बाहर के लोग ही हैं? क्या इसके हिस्से में सिर्फ़ इस शख्स की सर्द मेहरी और नज़रअंदाज़ किए जाना ही लिखा है? बातों के दौरान जुनैद ने एक लम्हे के लिए सर उठाया और सामने बैठी ज़ोया की तरफ देखा। ज़ोया की नज़रें भी इस पर जमी हुई थीं। इन आँखों में एक खामोश सवाल था, एक दुःख था। लेकिन जुनैद का चेहरा ज़ोया को देखते ही फ़ौरन सपाट हो गया। मुस्कुराहट इसके लबों से ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। इसने इंतहाई सर्द पेहनी से अपनी नज़रें हटाईं और दोबारा निशी की बातों में मसरूफ़ हो गया। ज़ोया ने एक लंबा और गहरा साँस लिया। इसने अपने हाथों की उँगलियों को आपस में सख्ती से उलझाया और अपनी तवज्जो सारा की तरफ मोड़ने की कोशिश की। अब वो पूरी तरह समझ चुकी थी कि इस घर में और ख़ास तौर पर जुनैद की ज़िंदगी में इसकी हैसियत सिर्फ़ एक ख़ामोश तमाशाई की है। इसे अपने दिल को खत्तर करना था, क्योंकि ये रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला था। इसने फ़ैसला कर लिया था कि वो कभी इस शख़्स के आगे नहीं झुकेगी और ना ही इसे अपनी कमज़ोरी दिखाएगी। और फिर वक़्त गुज़रने के साथ इसने वाक़ई अपने इस फ़ैसले पर अमल करके दिखाया। जुनैद की बेरुखी और सख्त रवैये को इसने अपनी आदत बना लिया था और अपनी तमाम तर तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई पर मरकूज़ कर दी थी। वो जानती थी कि इस घर की चारदीवारी में इसका सुकून सिर्फ़ इसकी किताबों से जुड़ा है। महीनों बाद आज यूनिवर्सिटी का लॉन ख़ासतौर पर रौनक लग रहा था। मौसम खुशगवार था और हल्की हवा चल रही थी। ज़ोया अपनी रनसारा के साथ घास पर बैठी कुछ नोट्स तरतीब दे रही थी। आज इनका क्लास फेलो अरसलान वहाँ आ गया। अरसलान एक दराज़-कद, खुदमिज़ाज, खुशमिज़ाज और इंतहाई सुलझा हुआ लड़का था, जिसके चेहरे पर हमेशा एक नर्म सी मुस्कुराहट रहती थी। वो पूरी क्लास में अपनी मदद करने वाली आदत और अच्छे अखलाक की वजह से पहचाना जाता था। अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अरसलान ने करीब आकर खुशदिली से पूछा। वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल बैठें, अरसलान ने ज़ोया किताबों से नज़रें हटाकर शाइस्तगी से जवाब दिया। अरसलान ने अपने बैग से कुछ कागज़ात निकाले और ज़ोया की तरफ बढ़ाए। ये लें। ज़ोया, आपके वो नोट्स जो पिछले हफ़्ते लाइब्रेरी में गुम हो गए थे, मैंने फ़ोटोकॉपी वाले से कहकर अपने नोट्स से दोबारा निकलवा लिए हैं। ज़ोया की आँखों में चमक आ गई। इसने जल्दी से वो कागज़ात थामे। बहुत शुक्रिया अरसलान, आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल हल कर दी है। मैं तो सोच-सोच कर परेशान हो रही थी कि अब फाइनल्स की तैयारी कैसे करूँगी। अरे बस करें ज़ोया, आप तो वैसे भी पूरी क्लास की टॉपर हैं। एक आध नोट्स गुम होने से आपका क्या बिगड़ जाएगा?
अरसलान ने मुस्कुराते हुए चुटकी ली। सारा जो पास बैठी इनकी बातें सुन रही थी, हंस पड़ी। बिल्कुल ठीक कहा आपने अरसलान भाई, ये तो घर में भी किताबों के अलावा किसी चीज़ को नहीं देखती। मैं तो इन्हें कहती हूँ कि किसी दिन किताबों के अंदर ही ना गायब हो जाएँ। इन दोनों की बातों पर ज़ोया भी बेसाख्ता हँस पड़ी। महीनों की उदास खामोशी और घुटन के बाद ये पहला मौका था जब ज़ोया के लबों पर इतनी खुली, साफ और बेसाख्ता मुस्कुराहट उभरी थी। वो सब कुछ भूलकर चंद लम्हों के लिए एक आम सी खुशबाश लड़की बन गई थी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि कुछ हादसे पर कोई इसे ही देख रहा है। इस समय जुनैद की गाड़ी यूनिवर्सिटी के बड़े से गेट से अंदर दाखिल हुई थी। आज वो ड्राइवर के बजाय खुद सारा को लेने आया था। इसने गाड़ी पार्किंग की तरफ मोड़ी तो अचानक इसकी नज़र दूर लॉन में बैठी ज़ोया पर पड़ी। जुनैद की निगाहें वहीं जम गईं। ज़ोया किसी गैर मर्द के साथ बैठी, यूँ खुलकर हँस रही थी जैसे इसे दुनिया का कोई गम ना हो। वही ज़ोया जिसका चेहरा घर में हमेशा सपाट और उतरा हुआ रहता था, जिसकी मुस्कुराहट जुनैद ने शादी के बाद से आज तक नहीं देखी थी। वो आज एक अजनबी लड़के की बातों पर मुस्कुरा रही थी। जुनैद के सीने में अचानक ये अनजानी सी आग भड़क उठी। ये एक ऐसा एहसास था जिससे वो खुद भी नावाकिफ था। इसके जबड़े की हड्डियां तन गईं और इसने स्टीयरिंग व्हील को इतनी सख्ती से मुट्ठी में जकड़ा कि इसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। इसका दिल चाहा कि अभी गाड़ी से उतरे और जाकर इस लड़के को वहां से उठा दे। इसे गुस्से से हॉर्न पर हाथ मारा और एक जोरदार और लंबी आवाज ने लॉन के पुरसुकून माहौल को तोड़ा। ज़ोया ने चौंक कर आवाज़ की सिम देखा। इस जानी-पहचानी गाड़ी को देखते ही इसके चेहरे की मुस्कुराहट एक सेकंड में गायब हो गई। इसने क्या देखा कि जुनैद ड्राइविंग सीट पर बैठा खिड़की से इसी ही देख रहा था। इसकी नज़रों की तपिश ज़ोया को दूर से भी महसूस हो रही थी। सारा भाई आ गए हैं, हमें चलना चाहिए। ज़ोया ने जल्दी से अपनी किताबें समेटते हुए घबराहट से कहा, खुदा हाफ़िज़, अरसलान नोट्स के लिए एक बार फिर शुक्रिया, इसने जल्दी से कहा और सारा का हाथ पकड़कर तेज़ी से गाड़ी की तरफ चल दी। वो दोनों जैसे ही गाड़ी के करीब पहुंची, जुनैद ने गाड़ी का इंजन पहले ही स्टार्ट करा हुआ था। ज़ोया ने खामोशी से पिछला दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गई, जबकि सारा अगली सीट पर बैठ गई। गाड़ी के अंदर का माहौल शदीद तनाव और घुटन का शिकार था। एसी चलने के बावजूद ज़ोया को अपने माथे पर पसीना महसूस हो रहा था। जुनैद की गज़बनाक निगाहें बार-बार बैकव्यू मिरर से सोया के चेहरे का तवाफ कर रही थी। खामोशी किसी बड़े तूफान का पता दे रही थी। सारा ने भी इस तनाव को महसूस कर लिया था। इसलिए वो खामोशी से वो विंडो से बाहर देखने लगी। जोया ने नज़रें झुका ली और अपनी गोद में रखी किताबों को बेचैनी से देखने लगी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि जुनैद इतने गुस्से में क्यों है। अचानक जुनैद की इंतहाई तल्ख़ और काटदार आवाज़ ने सी खामोशी को तोड़ा। यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए होती है, महफ़िलें जमाने और लड़कों के साथ हँसने के लिए नहीं। इस अचानक और सीधे हमले पर ज़ोया बुरी तरह गड़बड़ा गई। इसने फ़ौरन सर उठाकर शीशे में जुनैद को देखा। वो मेरा क्लास फ़ेलो है, वो सिर्फ़ मुझे ज़ोया ने अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। मैंने तुमसे कोई वज़ाहत नहीं माँगी। जुनैद ने इसकी बात काटते हुए सर्द लहजे में कहा, मुझे इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो कौन है और तुम इसे क्या समझती हो। बस आइंदा मुझे ये तमाशा दोबारा नज़र नहीं आना चाहिए। ज़ोया ने बेबसी से अपने होंठ काट दिए। इसके अंदर एक तूफ़ान मचल रहा था कि वो इसे बताए कि अरसलान सिर्फ़ इसकी मदद कर रहा था। लेकिन जुनैद इसके रवैये से फिर से खामोश होने पर मजबूर कर दिया। इसने नज़रें वापस किताबों पर जमा ली और खामोशी इख्तियार कर ली। इसे लगा कि इस शख्स को सफाई देना पत्थर से सर टकराने के बराबर है। लेकिन ज़ोया की ये खामोशी जुनैद के अंदर सुलगती हसद की आग को कम करने के बजाय मज़ीद भड़का रही थी। इसे लग रहा था कि ज़ोया जानबूझकर इसे नज़रअंदाज कर रही है और इस लड़के के लिए इसकी डाँट सुनकर भी खामोश है। इसे ज़ोया की आँखों में अपने लिए कोई ख़ौफ़ या सफाई देने की तलब नज़र नहीं आई, जो इसे मज़ीद चिढ़ दिला रही थी। इस गुस्से और झुँझलाहट में इसने गाड़ी की रफ़्तार खतरनाक हद तक बढ़ा दी। गाड़ी सड़क पर हवा से बातें करने लगी। भाई, भाई प्लीज़ आराम से गाड़ी चलाएँ, मुझे डर लग रहा है। सारा ने घबराकर सीट बेल्ट को मज़बूती से पकड़ते हुए कहा, लेकिन जुनैद ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वो बस सामने सड़क को देखते हुए गाड़ी दौड़ा रहा था। ज़ोया ने आँखें बंद कर लीं और सीट के किनारे को सख्ती से पकड़ लिया। इसका दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। वो इस शख्स को समझने से बिल्कुल कासिर थी, जो इंसान से अपनी बीवी मानने को तैयार नहीं था, इसे नज़रअंदाज करता था और आज इसे किसी और से बात करता देखकर इतना गुस्सा क्यों कर रहा था। घर पहुँचते ही जुनैद ने एक ज़ोरदार ब्रेक लगाई। ज़ोया और सारा ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गईं। जुनैद ने गाड़ी की चाबी निकाली और लंबे-लंबे कदम उठाता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ। वो सीधा लाउंज में गया और इंतहाई गुस्से से अपने हाथ में पकड़ी फाइल्स और चाबियां मेज पर पटक दी।
और सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठ गया। इसने दोनों हाथों से अपना चेहरा रगड़ा और एक लंबी सांस खारिज की। नताशा उर्फ निशी, जो सोफे पर बैठी हुई टीवी देख रही थी, इस अचानक चोट पर चौंक उठी। इसने टीवी की आवाज़ कम की और हैरत से जुनैद की तरफ देखा। क्या बात है जुनैद, क्या हुआ है तुम्हें? निशी ने पूछा। जुनैद ने कोई जवाब नहीं दिया। ऑफिस में कोई बहुत बड़ा मसला हो गया है क्या, जिसने तुम्हारा मूड इतना खराब कर दिया है? क्या तुम चीजें पटक रहे हो? निशी ने अपनी जगह से उठकर इसके करीब आते हुए पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जुनैद ने नफी में सर हिलाते हुए बामुश्किल खुद पर काबू पाया। बस वैसे ही में सर में दर्द है। इसी वक्त लॉन्च के दरवाजे से जोया खामोशी से अंदर दाखिल हुई। इसके चेहरे पर वही पुरसुकून और सपाट तासुर था, मगर कदमों में हल्की सी जल्दी थी। वो सर झुकाए सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी ताकि जल्दी से अपने कमरे में जा सके। जुनैद की नजरें लाशऊरी तौर पर फौरन इसकी तरफ उठ गईं। इसकी निगाहों में वही गुस्सा, वही बेचैनी और एक अजीब सी कसक थी जो वो छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। वो ज़ोया को तब तक देखता रहा जब तक वो सीढ़ियाँ चढ़कर नज़रों से ओझल नहीं हो गई। निशी, जो बज़ाहिर लापरवाह लगती थी, इंसानों को पढ़ने में बहुत माहिर थी। इसने जुनैद की इन बेचैन, गुस्सीली और ताक़ुब करती नज़रों को बहुत गौर से नोट किया था। वो जुनैद को भी जानती थी और इसके गुस्से की वजह भी फ़ौरन समझ गई थी। इसके लबों पर एक मायना ख़ास मुस्कुराहट उभर आई। इसने जान लिया था कि जिस शख्स ने ज़ोया को 6 माह से अपने दिल के दरवाज़े से बाहर खड़ा कर रखा था, अब इसी लड़की के किसी और के साथ हँसने पर इसके अंदर कैसे आग लग रही थी। निशी मुस्कुराती हुई वापस मुड़ी और अपनी जगह पर बैठकर स्क्रीन की तरफ देखने लगी। इसे बाखूबी अंदाज़ा हो चुका था कि जुनैद का दिल अब बदलना शुरू हो गया है और ये खामोश जंग अब नया रुख इख्तियार करने वाली है। रात के खाने पर डाइनिंग टेबल के गेट सब मौजूद थे। माहौल में दिन भर की थकावट और एक मामूल का ठहराव था। जुनैद खामोशी से अपना खाना खत्म करने में मसरूफ था। इसकी नज़रें सिर्फ अपनी प्लेट की हद तक महदूद थीं। इस वीकेंड पर हम सबको इस्लामाबाद जाना है, जुनैद के वालिद ने पानी का गिलास मेज़ पर रखते हुए अचानक ऐलान किया। मेरे कज़िन्स के बेटे की शादी है और इन्होंने ख़ास तौर पर पूरी फैमिली को शिरकत की ताकीद की है। तैयारियां मुकम्मल कर लें। सारा के चेहरे पर फौरन खुशी की लहर दौड़ गई। वो झुककर जोया के करीब हुई और धीमी आवाज में चहकने लगी। जबरदस्त जोया, मैं तो अपना वो नया ब्लैक ड्रेस पहनूंगी। आप क्या पहन रही हैं? जोया के लबों पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैंने इस तकरीब के लिए अपना नया सुर्ख जोड़ा निकाल कर रखा है। इस पर बहुत प्यारा काम हुआ है। मैं वही पहनूंगी। इसकी आवाज़ गो के धीमी थी, लेकिन पास ही बैठे जुनैद के कानों तक वाज़ेह पहुँच चुकी थी। जुनैद के हाथ में मौजूद निवाला एकदम रुक गया। इसने आहिस्तगी से लुक़मा प्लेट में वापस रखा और सर उठाकर सीधा ज़ोया की तरफ रुख किया। इसकी आँखों में दिन वाला तल्ख़ तासुर दोबारा उभर आया था। तुम वो सुर्ख लिबास हरगिज़ नहीं पहनोगी। इसकी आवाज़ इतनी वाज़ेह, सर्द और डो-टोक थी कि मेज़ पर मौजूद हर शख़्स के हाथ रुक गए। पूरी मेज़ पर एकदम मुकम्मल खामोशी छा गई। सब हैरानी से जुनैद का चेहरा तकने लगे। ज़ोया के होठों की मुस्कुराहट वहीं जम गई। इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। ये वो शख़्स था जिसे पिछले 6 माह में कभी इस बात से गर्ज़ नहीं रही कि ज़ोया क्या खाती है, क्या पहनती है या कहाँ जाती है। क्यों भाई? वो जोड़ा तो ज़ोया पर बहुत जचेगा, सारा ने उलझन से पूछा। जुनैद ने सारा की बात को नज़रअंदाज किया और अपनी गहरी सियाह आँखें ज़ोया की हैरतज़दा चेहरे पर जमा दी। मैंने जो कहना था कह दिया, तुम कोई हल्का रंग पहनोगी। वो सुर्ख़ लिबास पैक करके अलमारी के सबसे निचले खाने में रख दो। मुझे वो तुम्हारे आस-पास भी नज़र नहीं आना चाहिए। बगैर कोई मज़ीद वज़ाहत दिए इसने नैपकिन मज़ीद मेज़ पर फेंका और कुर्सी पीछे धकेल कर तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। जोया वहीं दम साधे बैठी रह गई। इसके अंदर एक तूफ़ान मचल रहा था। इस सख्त इंसान को अचानक इसके पहनावे से क्या मसला हो गया था? 2 दिन बाद शादी के हॉल में रोशनियों का सैलाब था। हर तरफ चहल-पहल और गहमा-गहमी थी। ज़ोया एक सादा मगर इंतहाई दिलकश पीच कलर के लिबास में मलबूस थी। हल्के मेकअप और सादगी के बावजूद इसकी कशिश हॉल में मौजूद बहुत सी निगाहों का मरकज़ बनी हुई थी। वो सारा के साथ एक सोफ़े पर बैठी थी, मगर इसे अपने इर्द-गिर्द एक अजीब-सी तपिश महसूस हो रही थी। इसने बेसाख्ता सर उठाकर सामने देखा। कुछ फासले पर खड़ा जुनैद अपने दोस्तों के झुरमुट में होने के बावजूद मुसलसल इसी की तरफ मुतवज्जा था। इसकी निगाहें ज़ोया के चेहरे का तवाफ़ कर रही थीं। इन आँखों में एक ऐसा पहरा था जिसने ज़ोया को उलझा कर रख दिया था। इसी दौरान हाल के दूसरे सिरे से अरसलान इनकी तरफ बढ़ता दिखाई दिया। वो दूल्हे का कज़न था और मेज़बान होने के नाते मेहमानों से मिल रहा था। ज़ोया और सारा को देखकर इसके चेहरे पर खुशगवार हैरत हुई। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों यहाँ। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि आप लोग हमारी तरफ से मेहमान हैं।
अरसलान ने करीब आकर खुशदिली से इनका इस्तकबाल किया। वालेकुम अस्सलाम अरसलान भाई। जी हम अंकल की तरफ से आए हैं, सारा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अरसलान की नज़र ज़ोया पर पड़ी। आप इस लिबास में बहुत मुख्तलिफ और खूबसूरत लग रही हैं ज़ोया। इसका अंदाज इंतहाई शाइस्ता था। ज़ोया ने महज सर हिलाकर धीमी सी आवाज़ में शुक्रिया अदा किया और नज़रें झुका लीं। वो जानती थी कि दूर खड़ा शख्स इस वक्त क्या महसूस कर रहा होगा। इसका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था। जुनैद के चेहरे का रंग गुस्से से सुर्ख हो चुका था, इसके माथे की रगें तन गईं। इसने अपने पास खड़े शख्स की बात को बीच में ही छोड़ा और लंबे रंग बढ़ता हुआ इनकी सिमत पड़ने लगा। इसके कदमों की चाप में एक खतरनाक इरादा छुपा था। अरसलान अभी सारा से कुछ मजीद बात कर ही रहा था कि जुनैद सीधा इसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। जुनैद का कद अरसलान से कुछ लंबा था और इसकी पूरी शख्सियत से एक ऐसा रोब छलक रहा था जिसने अरसलान को एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अपनी हद और अपनी नज़रें दोनों काबू में रखो। जुनैद की आवाज़ इतनी सर्द और काटदार थी कि अरसलान के चेहरे का रंग उड़ गया। मेरा वो मतलब नहीं था जुनैद भाई, मैं तो बस अरसलान ने बुरी तरह घबराकर सफाई पेश करनी चाहिए। मैंने तुमसे तुम्हारा मतलब नहीं पूछा, यहाँ से चले जाओ। जुनैद के अल्फाज किसी तेज़धार खंजर की तरह थे। अरसलान मज़ीद एक लफ्ज़ कहे बगैर तेज़ी से वहाँ से खिसक गया। सारा खौफज़दा होकर सोफे की फुर्श से लग गई। ज़ोया का दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि इसे अपनी पस्तियाँ टूटती हुई महसूस हो रही थीं। जुनैद ने मुड़कर ज़ोया को देखा। इसकी आँखों की सुर्खी ज़ोया को डरा रही थी। इसने आगे बढ़कर ज़ोया का बाजू अपनी फौलादी हाथ में सख्ती से जकड़ लिया। उठो, हम अभी घर जा रहे हैं। जुनैद छोड़े मुझे। सब देख रहे हैं, प्लीज़ यहाँ तमाशा ना बनाएं। ज़ोया ने रुहाँसू आवाज़ में मिन्नत की और अपना बाजू छुड़वाने की नाकाम कोशिश की। तमाशा तो तुम बना रही हो, चलो मेरे साथ। वो इसकी कोई भी बात सुने बगैर इसे ज़बरदस्ती हॉल के दरवाजे की तरफ खींचने लगा। लोगों की चहमगोइयाँ शुरू हो चुकी थी, लेकिन जुनैद को किसी की परवाह नहीं थी। वो इसे पार्किंग तक ले आया और गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलने के बजाय फ्रंट डोर खोलकर इसे सख्ती से अंदर बिठाया। गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी और अंदर एक खौफनाक दम घोट देने वाली खामोशी का राज था। जोया की आंखों से मुसलसल आंसू गिरकर इसके गालों को भिगो रहे थे। वो अपने बाजू को मसल रही थी, जहाँ जुनैद की उंगलियों के निशान सुर्ख हो चुके थे। मेरा कसूर क्या है? ज़ोया ने सिसकते हुए हिम्मत करके पूछा। आप मुझसे किस बात का बदला ले रहे हैं? 6 माह तक आपने मुझे अपने साये से दूर रखा। अब जब मैं खामोश होकर एक कोने में बैठ गई हूँ, तो आप मुझे लोगों के सामने क्यों ज़लील कर रहे हैं? जुनैद ने कोई जवाब नहीं दिया। इसने होंठ इतनी सख्ती से बीच रखे थे कि वो सफ़ेद पड़ रहे थे। इसकी पूरी तवज्जो सामने सड़क पर थी, लेकिन इसके अंदर चलने वाली शदीद मिल्कियत और हसद की आग इसे अंदर ही अंदर राख कर रही थी। आज अरसलान को ज़ोया के इतना करीब देखकर और फिर इसके लिबास की तारीफ करते सुनकर जुनैद के सब्र का हर पैमाना छलक चुका था। वो अपनी चीज़ पर किसी की नज़र तो दूर किसी का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे जवाब दो जुनैद, अगर आपको मेरी शक्ल से इतनी नफ़रत है तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ क्यों नहीं देते? ज़ोया की आवाज़ में दुःख और शदीद गुस्सा दोनों शामिल थे। गाड़ी एक ज़ोरदार झटके से घर के पोर्च में ब्रेक लगाई। जुनैद ने इंजन बंद किया और एक लम्हे के लिए भी ज़ोया की तरफ देखे बगैर बाहर निकल गया। इसने इतने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया कि ज़ोया अपनी जगह उछल पड़ी। वो रोते हुए गाड़ी से निकली और सीधा अपने कमरे की तरफ भागी। आज इसने हतमी फैसला कर लिया था कि वो इस जालिम, मगरूर और खुदगर्ज़ शख्स से कभी सीधे मुँह बात नहीं करेगी। वो अपने कमरे में पहुँची और दरवाज़ा बंद करके बेड पर गिरकर फूट-फूट कर रोने लगी। ये वही रात थी जिसका आगाज़ जुनैद के इसी गज़बनाक और पुरअसरार रवैये से हुआ था। जुनैद इस वक़्त बेड पर इसके बिल्कुल करीब झुका हुआ था और ज़ोया की आँखों में 6 माह की अज़ियत और शदीद खौफ़ साफ झलक रहा था। ज़ोया के इस खौफ़ज़दा और आँसुओं से भीगे चेहरे को अपने इतने करीब से देखकर जुनैद के अंदर भड़कने वाला हसद और जुनून अचानक जैसे दम तोड़ गया। इसे अपनी इस दरिंदगी पर एक पल के लिए खफ़्फ़त महसूस हुई। इसने अपने हाथ की गिरफ्त ढीली की और ज़ोया को छोड़कर एक कदम पीछे हट गया। इसने गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया, अपने कोट के बटन खोले और इसे सोफे की पुष्ट पर डाल दिया। मैं आज से इसी कमरे में सोऊंगा और ये मेरा हतमी फैसला है। इसकी आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सा ठहराव था। जोया को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। वो तेजी से बेड से नीचे उतरी और इसके सामने खड़ी हो गई। आप ऐसा नहीं कर सकते। 6 माह तक आपने मुझे इस कमरे में तन्हा छोड़े रखा, मुझे मेरी औकात याद दिलाई। अब अचानक आपको मुझ पर हक जताने का कोई शौक चढ़ाया है। तो सुन ले, मुझे ये ज़बरदस्ती का रिश्ता बिल्कुल मंज़ूर नहीं है। आप जा सकते हैं यहाँ से। जुनैद ने अपने बाजू सीने पर बाँधे और इंतहाई सुकून से इसके गुस्से से तमतमाते चेहरे को देखता रहा।
ज़ोया की ये बगावत इसे हैरान करने के बजाय अंदर ही अंदर महसूस कर रही थी। मैंने तुमसे मशवरा नहीं माँगा ज़ोया, मैं तुम्हें अपना फैसला बता रहा हूँ और जहाँ तक बात ज़बरदस्ती की है तो तुम मेरे निकाह में हो, कोई खैर नहीं। निकाह में तो मैं 6 माह पहले भी थी, तब आपका ये हक और ये रिश्ता कहाँ था? ज़ोया के आँसू दोबारा छलक पड़े। जुनैद ने इसकी बात को मुकम्मल तौर पर हवा में उड़ा दिया। वो अलमारी की तरफ बढ़ा, वहाँ से एक तकिया और कंबल निकाला और सोफ़े पर आकर लेट गया। लाइट बंद कर दो ज़ोया और खामोशी से सो जाओ, मुझे सुबह जल्दी उठना है। ज़ोया बेबसी से कभी इस शख्स को देखती, कभी दरवाज़े को। इसके अंदर का सारा गुस्सा आँसुओं की शक्ल में बह रहा था, मगर जुनैद ने आँखें बंद कर ली। ज़ोया ने हार मानकर लाइट बंद की और बेड के एक कोने में सिमट कर लेट गई। इसने सारी रात जाग कर गुज़ार दी, इसका ज़हन इसी उलझन में उलझ रहा था कि ये शख्स अचानक इस कदर क्यों बदल गया है। अगले चंद दिनों में घर वालों के लिए ये एक इंतहाई खुशगवार हैरत थी कि जुनैद ने मुलाज़िमा को बुलाकर अपना सारा सामान ज़ोया के कमरे में मुंतकिल करवा लिया था। जुनैद की वालदा तो खुशी से निहाल थीं, लेकिन ज़ोया के लिए ये सब किसी कड़े इम्तिहान से कम नहीं था। अब जुनैद पूरी तरह इस पर हावी रहने लगा था। सुबह ज़ोया तैयार होकर नीचे आती तो वो पहले से नाश्ते की मेज़ पर मौजूद होता। मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ दूँगा, जल्दी नाश्ता ख़त्म करो। जुनैद ने चाय का कप रखते हुए आम से अंदाज़ में कहा। मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊँगी, आपको ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं। ज़ोया ने नज़रें झुकाए अपना बैग दुरुस्त करते हुए जवाब दिया। जुनैद अपनी कुर्सी से उठा और इसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। मैंने ज़हमत की शिकायत नहीं की। 5 मिनट में बाहर गाड़ी के पास आओ। ज़ोया कुढ़ती हुई खामोशी से इसके पीछे चल पड़ी। गाड़ी का सफ़र बिल्कुल खामोश रहता था, लेकिन जुनैद की मौजूदगी ज़ोया को हर वक़्त एक अजीब से दबाव में रखती थी। वो छोटी-छोटी बातों पर इस पर हुक्म चलाता था। क्लास खत्म होते ही सीधा गेट पर आना, इधर-उधर लॉन में बैठने की ज़रूरत नहीं है। वो इसे उतारते हुए सख्ती से कहता, ज़ोया सिर्फ सर हिलाकर अंदर चली जाती। वो सब कन्फ्यूजन का शिकार थी कि जो इंसान चंद दिन पहले तक इसे देखना गवारा नहीं करता था, अब इसे अपने साये से भी दूर क्यों नहीं जाने दे रहा। लेकिन इस सख्ती और पाबंदियों के पीछे छुपी एक अजीब-सी हिफ़ाज़त और नरमी ने ज़ोया के दिल की बर्फ़ को आहिस्ता-आहिस्ता पिघलाना शुरू कर दिया था। वो खामोशी से इस नए जुनैद को दरियाफ़्त कर रही थी। वो सख्त ज़रूर था, गुस्सा भी करता था, मगर किसी भी सूरत में इसकी आँखों में ज़ोया के लिए वो पुरानी नफ़रत या सर्द-महरी नहीं थी। वो इसका ख़्याल भी रख रहा था, बस इसी का अंदाज़ अपना था। एक दोपहर यूनिवर्सिटी से वापसी पर अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। ज़ोया गेट से बाहर निकलकर गाड़ी तक पहुँचने में पूरी तरह भीग चुकी थी। जुनैद ने जल्दी से गाड़ी का हीटर ऑन किया और डैशबोर्ड से टिश्यू निकालकर इसकी तरफ बढ़ाए। तुम्हें नजर नहीं आ रहा था कि बारिश तेज हो रही है? कुछ देर अंदर रुक जाती। इसके लहजे में गुस्से के साथ फिक्रमंदी भी थी। मैं आपको इंतजार नहीं करवाना चाहती थी, जोया ने कांपते हुए जवाब दिया और मुंह मोड़कर खिड़की से बाहर देखने लगी। इस शाम बारिश में भीगने की वजह से जोया को शदीद सर्दी लगने लगी और रात तक इसे तेज बुखार चढ़ गया। वो निढाल होकर बेड पर गिरी हुई थी। जुनैद कमरे में आया तो इसने ज़ोया को कंबल में बुरी तरह काँपते हुए पाया। इसने जल्दी से आगे बढ़कर ज़ोया के माथे पर हाथ रखा। इसका माथा भट्टी की तरह तप रहा था। जुनैद के चेहरे पर पहली बार हकीकी परेशानी और खौफ उभरा। इसने फौरन फ़ोन करके डॉक्टर को बुलवाया और दवाइयाँ मंगवाईं। रात के इस पहर जब सारा घर सो रहा था, जुनैद परेशानी के आलम में खुद पानी का प्याला लिए ज़ोया के सराहने बैठा था। वो बार-बार ठंडे पानी की पट्टियाँ इसके माथे पर रख रहा था। ज़ोया नींद को नूरकी में थी, बुखार की तपिश ने इसके हवास सुनगा दिए थे। जुनैद ने जैसे ही पट्टी बदलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, ज़ोया ने अचानक अपने गर्म और कांपते हुए हाथों से इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। जुनैद के हाथ की हरकत वहीं रुक गई। इसने हैरत से ज़ोया के बुखार से सुर्ख होते चेहरे को देखा। मत जाएं प्लीज़, मुझे अकेला मत छोड़ें। ज़ोया ने बंद आंखों के साथ बामुश्किल सरगोशी की। इसकी आवाज़ में इतनी बेबसी और डर था कि जुनैद के दिल में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया हो। जुनैद ने अपना हाथ छुड़ाने के बजाय अपने दूसरे हाथ से ज़ोया के हाथ को नरमी से थाम लिया। वो बेड के किनारे पर बैठ गई और ज़ोया के बिखरे हुए बालों को इसके माथे से हटाया। कहीं नहीं जा रहा ज़ोया, मैं यहीं हूँ, बिल्कुल तुम्हारे पास। इस रात जुनैद ने एक पल के लिए भी आँख नहीं झपकी। वो सारी रात इसका हाथ थामे इसके तपते हुए चेहरे को तकते गुजार देता। इस खामोश रात में ज़ोया की तकलीफ को देखकर पहली बार जुनैद को पूरी शिद्दत से ये एहसास हुआ कि वो इस लड़की की मोहब्बत में पूरी तरह गिरफ्तार हो चुका है। वो गुरूर और ऐना का खौफ जो इसने अपने गिरद चढ़ाया हुआ था, वो ज़ोया के इस एक लम्ह से मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। वो जान गया था कि अब ज़ोया के बगैर एक पल भी जीने का तसव्वुर नहीं कर सकता।
अगले दिन दोपहर के वक़्त ज़ोया की तबीयत कुछ बेहतर हुई। बुखार उतर चुका था और वो तकिए से लेट लगाए बेड पर बैठी थी। जुनैद इसे नाश्ता करवाकर अभी ऑफ़िस गया था। कमरे का दरवाज़ा खुला और नताशा उर्फ निशी मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। कैसी है हमारी बीमार परी? निशी ने चहकते हुए कहा और इसके करीब आकर बेड पर बैठ गई। ज़ोया ने धीमी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं अब बहुत बेहतर हूँ। लेकिन ज़ोया के दिल में निशी के लिए अभी भी एक छोटी सी खलिश बाकी थी। इसे वो दिन याद था जब निशी जुनैद के साथ लॉन्ज में हंस हंस कर बातें कर रही थी। जुनैद ने ज़ोया को यकसर नज़रअंदाज कर दिया था। निशी ने ज़ोया के चेहरे की उलझन और इसकी आंखों में छुपी हिचकिचाहट को फौरन भर लिया। वो एक खुले जहन की लड़की थी और बातों को घुमाना इसे नहीं आता था। तुम मुझे देखकर अभी भी कंफ्यूज हो ना ज़ोया? निशी ने हल्का सा कहका लगाते हुए पूछा। ज़ोया ने घबरा कर नफी में सर हिलाया। नहीं निशी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मुझसे मत छुपाओ, मैं जानती हूँ तुम इस दिन लाउंज वाली बात को लेकर परेशान हो। निशी ने ज़ोया का हाथ अपने हाथ में लिया और संजीदा हो गई। सुनो ज़ोया, जुनैद और मैं बचपन के दोस्त हैं। हमने एक साथ पढ़ा, एक साथ खेले। वो मुझे कभी एक लड़की समझता ही नहीं है। इसके लिए मैं एक लड़कों जैसा दोस्त हूँ जिसके साथ वो बाइक और क्रिकेट की बातें कर सकता है। हमारे बीच इसके अलावा और कोई रिश्ता ना कभी था और ना कभी हो सकता है। ज़ोया खामोशी से इसकी बातें सुन रही थी। इसके सीने पर रखा एक बहुत बड़ा बोझ जैसे हल्का हो रहा था। निशी ने शरारत से मुस्कुराते हुए मज़ीद कहा, और तुम्हें पता है तुम्हारे इस मगरूर शौहर का दिमाग कब खराब हुआ था? ज़ोया ने नासमझी से इसकी तरफ देखा। इस दिन जब इसने तुम्हें यूनिवर्सिटी में अरसलान के साथ खड़े मुस्कुराते हुए देखा था। निशी ने हंसते हुए इंकिशाफ किया। वो गुस्से में घर आया था और तुम पर नजरें गाड़े हुए था। मुझे इसी दिन समझ आ गई थी कि जुनैद मियाँ को तुमसे बेपनाह मोहब्बत हो चुकी है। बस वो अपनी अना और हसद की वजह से मानने को तैयार नहीं था। ज़ोया हैरत से निशी को देखती रह गई। इसके ज़हन में पिछले चंद दिनों के सारे मनाज़िर एक फ़िल्म की तरह चलने लगे। जुनैद का अरसलान को देखकर गुस्सा करना, सुर्ख जोड़ा पहनने से रोकना, शादी के हाल में अरसलान की बेइज्जती करना और फिर इसे घर ज़बरदस्ती घर वापस लाना। वो जैसे जुनैद की बिला वजह की सख्ती, नफ़रत और पाबंदियाँ समझ रही थी, वो दरअसल इसका शदीद हसद और बेपनाह मोहब्बत थी। ज़ोया के दिल की धड़कन में साख्ता तेज़ हो गई। इसके दिल पर पड़ा हुआ गलतफ़हमियों का सारा पर्दा फ़ौरन दूर हो गया। इसे अब समझ आने लगा था कि जुनैद का हर गुस्सा दरअसल इसे खो देने के डर का नतीजा था। अंदर ही अंदर इसके दिल में एक अजीब-सी मीठी-सी खुशी फैलने लगी थी। इस शाम ड्राइविंग रूम में एक गैर मुतवक्का सूरत-ए-हाल ने सबको हैरान कर दिया। घर की बेल बजने पर जब मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला तो सामने अरसलान अपनी वालिदा और बड़ी बहन की हमरा खड़ा था। इसके हाथों में मिठाई की बड़ी-सी टोकरी और फूल थे। जुनैद इस वक्त लाउंज में ही मौजूद था और फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। अरसलान को अपने घर के अंदर दाखिल होते पाकर इसका चेहरा का रंग एकदम बदल गया। फ़ोन इसके हाथ में ही रह गया और इसकी मिट्टियाँ खुद ब खुद सख्ती से भिज गईं। इसके दिमाग में वही पुराने मनाज़िर और गुस्सा फिर से सर उठाने लगा। वो किसी भी तूफ़ान के फटने का इंतज़ार करने लगा। इसे लग रहा था अरसलान यहाँ ज़रूर कोई तमाशा खड़ा करने आया है। जुनैद की वालिदा ने मेहमानों की खुरदली से ड्राइंग रूम में बिठाया। ज़ोया भी चाय का ट्रे लिए वहाँ आ पहुँची। जुनैद सोफ़े पर इंतहाई अकड़े हुए अंदाज़ में बैठा अरसलान को कच्ची खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। अगर बस चलता तो वो इसे इसी वक्त कॉलर से पकड़कर घर से बाहर निकाल देता। दरअसल हम आज एक बहुत खास मकसद के लिए आए हैं। अरसलान की वालिदा ने मुस्कुराते हुए बात का आगाज़ किया। अरसलान ने हमें ज़ोया बेटी के बारे में बहुत कुछ बताया है। ये दोनों क्लास फेलोज़ हैं ना, तो हमने सोचा कि हम कि हिम्मत कर ही लें। जुनैद की रगें तन गईं। इसका साँस सीने में अटक गया। इससे पहले कि वो वत करता और कोई तल्ख़ बात कहता, अरसलान की वालिदा ने अपनी बात मुकम्मल की। हम दरअसल ज़ोया बेटी के ज़रिए आपकी छोटी बेटी सारा का रिश्ता माँगने आए हैं। अरसलान को सारा बहुत पसंद है और शादी वाले दिन इसने सारा को देखकर ही हमें कह दिया था कि वो शादी करेगा, तो बस इसी लड़की से। अगर आप लोगों को कोई एतराज़ ना हो तो हम इस रिश्ते को पक्का समझें। ये अल्फाज जुनैद के लिए किसी जोरदार धमाके से कम नहीं थे। इस वक्त इसके कदम ज़मीन पर जम गए। इसका सारा गुरूर और सारा गुस्सा, वो सारी नफ़रत जो इसने अरसलान के लिए दिल में पाल रखी थी, एक ही पल में रेत की दीवार की तरह ज़मीन बोस हो गई। इसका दिमाग सुन्न हो गया। इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। अरसलान सारा के लिए आया था, ज़ोया के लिए नहीं। वो सख्ते के आलम में कभी खुशी से मुस्कुराती हुई अपनी वालिदा को, तो कभी हैरत से खड़ी ज़ोया को और कभी शर्माए हुए अरसलान को देख रहा था। इसी लम्हे इसे अपनी बेवकूफ़ी, अपने बिला वजह के शाख और सबसे बढ़कर ज़ोया को दी गई इसकी बेपनाह तकलीफ़ पर शदीद शर्मिंदगी महसूस हुई। इसका दिल चाहा कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए।
इसने ज़ोया के किरदार पर शक किया था, इसे रुलाया था, इसे सबके सामने ज़लील किया था और वो लड़की हर बार खामोशी से इसके ज़ुल्म सहती रही। आज जुनैद को अपने से शदीद नफ़रत महसूस हो रही थी। रात का पिछला पहर था। मेहमानों के जाने के बाद घर में मुकम्मल खामोशी छा चुकी थी। ज़ोया अपने कमरे में बालकनी के पास खड़ी ठंडी हवा महसूस कर रही थी। इसका ज़हन आज के वाक़ये और निशी की बातों में उलझा हुआ था। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। ज़ोया ने मुड़कर देखा। जुनैद अंदर दाखिल हो रहा था और इसके हाथ में ज़ोया का पसंदीदा सुर्ख़ गुलाबों का एक बड़ा सा गुलदस्ता था। इसने दरवाज़ा बंद किया और धीमे कदमों से चलता हुआ ज़ोया के करीब आया। इसने बालकनी का शीशा वाला दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि बाहर की हवा अंदर ना आ सके। ज़ोया खामोशी से इसे देख रही थी। आज जुनैद की आँखों में कोई रोब नहीं था, कोई सर्द मेहरी नहीं थी और ना ही गुस्सा था, जो हमेशा इसकी पहचान हुआ करता था। आज इस इंसान की आँखों में शदीद नदामत और एक वाज़ेह हार थी। वो सुर्ख़ गुलाब इसने ज़ोया की तरफ बढ़ा दिए। ये क्या है? ज़ोया की आवाज़ धीमी थी। एक मुजरिम की तरफ से माफ़ी की छोटी-सी कोशिश। जुनैद का लहज़ा इतना नर्म और टूटा हुआ था कि ज़ोया का दिल एकदम धड़क उठा। इसने फूल थाम लिए मगर कुछ बोली नहीं। जुनैद ने एक गहरा साँस लिया और इसके बिल्कुल करीब खड़ा हो गया। मैंने एक अच्छे शौहर का फ़र्ज़ नहीं निभाया ज़ोया। वो नज़र झुकाए एक मुजरिम की तरह एतराफ़ कर रहा था। मैंने अपनी अना और अपनी ज़िद की वजह से तुम्हें बिला वजह रुलाया। मैंने ये सोचा ही नहीं कि मेरे सख्त रवैये से तुम्हारे मासूम दिल पर क्या गुज़र रही होगी। मुझे लगता था कि मैं बहुत मज़बूत हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, लेकिन तुमने मेरी सारी मज़बूती तोड़ दी। आज जब मुझे हकीकत का पता चला तो मैं खुद अपनी नज़रों में गिर गया हूँ। ज़ोया इसके बदले हुए अंदाज़ और आँखों में मौजूद सच्चाई को देखकर मुकम्मल तौर पर हैरत-ज़दा रह गई। वो शख्स जो कभी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता था, आज इसके सामने सर झुकाए खड़ा था। बेइख्तियार ज़ोया की आँखों में आँसू आ गए। इसकी पलकें भीग गईं। आपने मुझ पर शक क्यों किया? अब क्यों लगा कि मैं ज़ोया से अपनी बात मुकम्मल नहीं की गई? इसका गला रुन गया था। जुनैद ने बेकरारी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपने अंगूठे से ज़ोया के रुखसार पर गिरने वाला आँसू साफ किया। इसका कलम बेहद नर्म था, वो शक नहीं था। ज़ोया वो मेरा हसद था, मेरी दीवानगी थी। जुनैद ने इसकी आँखों में बराह रास्त देखते हुए अपने दिल का सारा हाल बयान करना शुरू किया। जब मैंने पहली बार तुम्हें यूनिवर्सिटी के लॉन में इस लड़के के साथ मुस्कुराते हुए देखा, तो मेरे सीने में जैसे किसी ने आग लगा दी। तुम मेरे घर में मेरे सामने हमेशा उदास रहती थी, तुम्हारे लबों पर मुस्कुराहट नहीं होती और तुम किसी और के सामने यूँ खुलकर हँस रही थी। मेरा दिल चाहा कि मैं इस वक़्त पूरी दुनिया को आग लगा दूँ। ज़ोया ने हैरानी से साँस अंदर खींची। इस शख्स की दीवानगी की दास्तान इसे हैरान कर रही थी। मैं एक इंतहाई खुदगर्ज़ इंसान हूँ ज़ोया। जुनैद की आवाज़ में एक अजीब-सा दर्द और शिद्दत थी। मैं अपनी चीज़ पर, अपने रिश्ते पर किसी गैर का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब इस दिन इसने तुम्हारे लिबास की तारीफ़ की तो मेरे दिमाग की रगें फटने वाली हो गईं। मैंने तुम्हें किसी और की नज़रों से बचाना चाहता था। मैं तुम्हें छुपाना चाहता था। मैं मानता हूँ मेरा तरीका गलत था, बहुत ज़ालिमाना था, मगर मेरी नीयत में कोई खोट नहीं था। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी ज़ोया और मुझे खुद इस बात का अंदाज़ा बहुत देर से हुआ। ज़ोया ये सब सुनकर कुछ पल के लिए खामोश हो गई। इसका दिल सीने में इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि इसे लगा जुनैद भी इसकी आवाज़ सुन लेगा। इसकी दीवानगी और शिद्दत के इकरार ने ज़ोया के अंदर की सारी शक-व-शुबहात की दीवारें गिरा दी थी। वो शख्स इससे इतनी मोहब्बत करता था और वो इसे महज़ एक ज़ालिम इंसान समझती रही। दिल ही दिल में एक मीठी सी ख्वाहिश ने इसे घेर लिया। इसने शर्मा कर अपनी नज़रें झुका लीं और इसके गोरे गालों पर हया की गहरी सुर्खी दौड़ गई। जुनैद ने ज़ोया का वो हाथ जिसमें इसे भूल नहीं पगाए थे, अपने दोनों हाथों में ले लिया। इसका गरम लम्स मुहाफ़िज़ाना था। क्या तुम इस बुरे गुस्से वाले, मग़रूर मगर तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने वाले शख़्स को दिल से कबूल करोगी? क्या तुम मुझे एक मौका दोगी कि मैं तुम्हारी आँखों में दोबारा कभी आँसू ना आने दूँ? इसकी आवाज़ में इल्तिजा थी। ज़ोया ने धड़कते दिल के साथ आहिस्ता से सर उठाया। इसकी आँखों में अब कोई खौफ़ या शिकवा नहीं था, बल्कि एक चमक थी। इसने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। इसकी यहाँ पर जुनैद ने एक लंबा और गहरा सुकून का साँस लिया। इसके चेहरे पर महीनों बाद एक सच्ची और पुरसुकून मुस्कुराहट उभरी। इसने ज़ोया के हाथ पर अपने लब रखे और फिर कदरे झुककर इसकी पेशानी पर मोहब्बत और हिफाज़त की वो मेहर ज़ब्त कर दी जो हमेशा के लिए ज़ोया की हो चुकी थी। इस रात इन दोनों के दरमियान मौजूद हर गलतफ़हमी, हर दूरी और हर चहलपहली हमेशा के लिए ख़त्म हो गई थी। कुछ माह बाद का मंज़र था। मौसम बेहद खूबसूरत था और ठंडी हवाएँ चल रही थीं। जुनैद और ज़ोया अपने कमरे की बालकनी में रखे
सोफे पर बैठे चाय पी रहे थे। जुनैद ने एक हाथ से जोया के कंधे के गिर्द निसार बांधा हुआ था और दूसरे हाथ में कॉफी का मग था। जोया इसे कोई बात सुना रही थी जिस पर वो दोनों खुलकर हंस रहे थे। इनकी हंसी की आवाज से सारा कमरा गूंज रहा था। जोया ने अपना सर जुनैद के शाने पर रख दिया। इसे अब मुकम्मल यकीन आ चुका था कि इसकी खामोशी, इसके सब्र और इसकी खुददारी ने इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन मोहब्बत करने वाला मुहाफिज जीवन साथी दिला दिया है। जुनैद ने अपने कॉफी का मग टेबल पर रखा और जोया के सर पर हल्का सा प्यार किया। इनका ये सफर बहुत तल्ख था, आंसुओं और गलतफहमियों से भरा हुआ था, लेकिन इसका अंजाम बेहद खूबसूरत निकला था। यूं एक सर्द, बेहिस और जबरदस्ती के रिश्ते ने एक इंतहाई दिलकश और लाजवाब मोहब्बत का रूप धार लिया था।